اگر آپ کو 200 یونٹ بجلی مفت میں چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ جو ہے وہ روف ٹاپ سولر پینل انسٹال کرنا ہوگا۔ یہ عمر عبداللہ صاحب کی حکومت کا آج بیان آ چکا ہے جناب۔ اب یہ روف ٹاپ سولر پینل جو ہے یہ پیسے کا ملتا ہے، یہ مفت میں نہیں ملتا ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اس پہ کچھ 65% تک کی سبسڈی بھی رہتی ہے اور تقریباً اس کی قیمت جو ہے وہ آس پاس 1.5 لاکھ روپے تک کی بن جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ سرکار جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے اور باقی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ جب مینیفیسٹو نیشنل کانفرنس نے اپنا جاری کیا تھا اس سمے اس مینیفیسٹو میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ روف ٹاپ سولر پینل انسٹال کرنا ہوگا۔ یہ تو سینٹرل سپانسرڈ اسکیم ہے، یہ تو پردھان منتری نریندر مودی کی اسکیم ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ پی ایم سوریہ بجلی گھر یوجنا کے تحت آپ کو ملے گا اور مفت بجلی یوجنا کے تحت یہ آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے تحت آپ اپنے گھر میں 200 یونٹ تک بجلی کی جو کنزمپشن ہے اسے بچا سکتے ہیں یا ریزرو کر کے رکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک جھوٹ ہے؟ کیا یہ ایک دھوکہ ہوا ہے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ 200 یونٹ بجلی پہ؟ کیونکہ دیکھیے میں یہ سوال اس لیے بڑے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں کیونکہ جو وعدہ کیا تھا ایز پر دا مینیفیسٹو اس میں لکھا ہوا تھا 200 یونٹ بجلی مفت میں ملے گا، اور نیشنل کانفرنس کی سپوکس پرسن نے یہ دعویٰ پیش کیا تھا امیر ہو یا غریب ہو سب کو یہ ملے گا۔ لیکن حکومت کے بننے کے بعد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ جناب یہ صرف AAY کو ملے گا۔ وہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ اگر آپ AAY کو دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سولر روف ٹاپ پینل انسٹال کرنا ہوگا۔ اب پہلے ہمیں یہ سولر روف ٹاپ پینل خرید کے مارکیٹ سے لانا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ 1,20,000 1,30,000 کیونکہ کلو واٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ نے جتنے کلو واٹ کا لینا ہے، زیادہ کلو واٹ کا لوگے تو اتنا مہنگا ہے، کم کلو واٹ کا لوگے تو اتنا ہی سستا ہے۔ تو یہ تو سرکار کی سینٹرل سپانسرڈ اسکیم ہے، اس میں تو نیشنل کانفرنس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ 200 یونٹ بجلی مفت میں دے رہے ہیں۔ اگر میں لیٹ سپوز میں AAY میں نہیں آ رہا ہوں، اگر میں BPL میں آتا ہوں یا APL کی کیٹیگری میں آتا ہوں تو میں بھی اپنے گھر پہ وہ لگوا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں کم بجلی کا استعمال کروں گا تو میرے پاس وہ کچھ یونٹس جو ہیں وہ سیو ہو سکتے ہیں، یا ان یونٹس کو میں ریزرو کر کے رکھ سکتا ہوں، بچا کے رکھ سکتا ہوں، اور آئندہ انہی یونٹس کا میں استعمال بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک دعویٰ اور نیشنل کانفرنس کا کھوکھلا ثابت ہوتے ہوئے نظر آیا کہ 200 یونٹ بجلی مفت میں فراہم کی جائے گی عام شہریوں کو۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت بننے کے بعد حکومت بن گئی، اب 200 یونٹ کی باری آئی، یہ کہہ رہے ہیں جناب پہلے آپ روف ٹاپ سولر پینل انسٹال کرو، اس کے بعد ہم آپ کو 200 یونٹ بجلی دیں گے۔ یہ تو 2 سال تقریباً مجھے لگتا ہے کم و بیش 2 سال پرانی اسکیم ہے، اور یہ سینٹرل سپانسرڈ اسکیم ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی، جس میں انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ PM مفت بجلی یوجنا اسکیم کے تحت آپ کو اس کا لابھ ملے گا، فائدہ ملے گا، اور اگر آپ یہ انسٹال کرتے ہو تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، وحید الرحمان نے جو بل آن بورڈ کیا، یعنی کہ جو بل انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا، وہ بل یہ تھا کہ سرکاری زمینوں کا مالکانہ حقوق عام شہریوں کو ملے۔ آج جموں کشمیر کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایسے عام شہری ہیں جن کے گھر کاچرائی زمین پہ ہیں، جن کے گھر شاملات پہ ہیں، جن کے گھر سرکاری زمین پہ ہیں، وہ لینڈ لیس لوگ ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ جناب یہ بل لینڈ گریبرز کے لیے PDP لے کر آ رہی ہے، یہ بل لینڈ گریبرز کے لیے ہے، جو لوگ مطلب سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے PDP نے لایا ہے۔ یہ ان کے سپوکس پرسن نے بھی اور MLA تنویر صادق نے بھی کہا کہ یہ لینڈ گریبرز کے لیے یہ بل ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ کلیئر کر دیں یہ لوگ کہ اگر یہ بل لینڈ گریبرز کے لیے ہے تو پھر نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو BJP کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں لینڈ جہاد، BJP کے لوگ کہتے ہیں لینڈ جہاد، نیشنل کانفرنس کے لوگ کہتے ہیں لینڈ گریبر۔ اب مجھے بتائیں، ایک غریب انسان جس کا گھر شاملات پہ ہے، یا جس کا گھر جو ہے وہ کاچرائی زمین پہ ہے، یا جس کا گھر جو ہے وہ سرکاری زمین پہ بنا ہوا ہے 2-3 مرلے میں، وہ شخص کہاں جائے گا؟ اب اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے اپنا رپلائی فوری طور پہ کر دیا۔ نیشنل کانفرنس نے کہا جناب ایسا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ہم انہیں 5 مرلے کا پلاٹ دیں گے، ہم انہیں 5 مرلے کی زمین فراہم کریں گے، ڈاکومنٹیشن ہماری آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کا فائنل سروے رپورٹ ہمارے پاس آنے والی ہے، اور اس کے بعد ہم جو یہ زمین ہے یہ ہمیں الاٹ کرنی ہے ان لوگوں کے نام پہ جن لوگوں کو اس کا لابھ ملنا چاہیے، جو وکٹمس ہیں، چاہے وہ فلڈ وکٹمس ہیں، چاہے وہ کوئی اور وکٹم ہے جس کے پاس اس سمے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ لینڈ لیس ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر آج بحث ہوئی۔ پھر رہی بات ڈیلی ویجرز کی، سب بار بار مجھے سوال کر رہے تھے ڈیلی ویجرز
वेजर्स पे बताएं। डेली वेजर्स के लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब हमने एक कमेटी बनाई हुई है, 6 मेंबर्स कमेटी है, उसको ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी साहब उसकी सदारत में है और चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में है वो कमेटी, और फाइनल रिपोर्ट उसकी आना बाकी है। तो फिलहाल के तौर पे हम डेली वेजर्स की जो बिल है इसे विड्रॉ करते हैं। अभी हम पुरानी उसी रिपोर्ट को ही देखेंगे, उसी पे हम गौर करेंगे कहाँ पे हमें जो है वो तरमीम करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें जो है वो डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए कुछ नए यानी कि कानून लाने की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर हम गौर व फिक्र करेंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि फायर विक्टिम्स, जिन लोगों के घरों को आग लगी है, घर जलकर राख हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मुस्तकबिल में क्या रहेगा, और माजी उनका बहुत यानी कि परेशान वाला साबित हुआ है, अब मुस्तकबिल में उन्हें थोड़ी रियायत मिले तो उनके लिए फौरी तौर रिलीफ का ऐलान किया जाए, उसके ऊपर भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। उसके बाद था कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो ये मतलब बोसीदा गोश्त, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा रोटन मीट लाया और उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे बीमारियां भी फैली, काफ़ी परेशान भी हुए। तो जो MLA टंगमर्ग है उन्होंने कहा कि जनाब हाँ कंप्लीट बैन होना चाहिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, सेल पे, जो ये बाहर से मीट लाया जाता है ये कंप्लीट बंद होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की अपनी जो इंडस्ट्री है इसे प्रमोट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर फ्रूट ग्रोवर्स पे बात हुई कि फ्रूट ग्रोवर्स का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिन लोगों के अपने बाग हैं, सेब हैं, उनके लिए कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस प्लान के अंदर उन्हें भी जो है वो माली मदद फराहम करने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद जो वो शराब पे पाबंदी आयद हो, उसको लेकर 4-5 MLAs ने सेम जो है वो अपनी बिल्स ऑन टेबल की, उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत रखने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस पर भी बातचीत नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर आज 41 बिल्स थी, लेकिन उसमें से कुछ ही बिल्स के ऊपर डिस्कशन हुई। अब बाकी बिल्स जो हैं वो कौन कौन सी पास हुई हैं उसके हवाले से भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन MLA इफ्तिखार अहमद का बड़ा अच्छा बिल था, जो MLA रजौरी हैं, उन्होंने कहा कि जो बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं या बाकी जो बच्चे हैं जो इस समय तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 12th पास है उसे 5,000 रुपये महीने से महीना वजीफ़ा मिलना चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन की है उसे 10,000 दे दें, और जो ग्रेजुएशन कर रहा है 10,000 दे दें, या कंप्लीट की है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसे 15,000 रुपये दे दें। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है उसके तहत ये दें, ताकि उन लोगों को उन बच्चों को जो है वो मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुंचे। तो ये कुछ बड़े अहम तरीन मुद्दे थे जिन पर डिबेट्स हुई। लेकिन जो ज़मीनों का मालिकाना हकूक़, सरकारी ज़मीनों का मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए, आपका राइट है कि आप वहाँ पर रहें, उस चीज़ के हवाले से उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। डेली वेजर्स को लेकर विड्रॉ कर दिया गया अपना बिल, और 200 यूनिट बिजली पे क्लियर सरकार ने कह दिया कि आप पहले सोलर पैनल जो है वो अपने घरों पे इंस्टॉल करें, सोलर का जो रूफ टॉप पैनल आता है वो अपने घर पे इंस्टॉल करें, उसके बाद ही हम आपको 200 यूनिट बिजली देंगे। तो अब आप सब लोगों ने पहले सोलर पैनल लेके आने हैं। अब ये 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए के 92,000 रुपये का मिलता है, ये एज पर द किलोवाट, कितने किलोवाट का लेना, उसके बाद वो आप इंस्टॉल करोगे, फिर 200 यूनिट आपको मिलेगा। वो भी मीटर लगेगा पहले आपके घर पे, उसके बाद ये पैनल लगेगा, फिर पैनल के ज़रिए चेक किया जाएगा कितनी बिजली आप इस्तेमाल करते हो, कितनी बिजली आपके पास बचती है, कितने यूनिट्स आपका इस्तेमाल होता है, कितना यूनिट आप रिजर्व करते हो, उन यूनिट्स के साथ साथ किस तरीके से मुस्तकबिल में जो है वो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, कैसे आपने अपनी बिजली को बचाना पड़ेगा, वो प्रॉपर ये सिखाएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं कहीं पे भी इस चीज़ से एतमाद या यकीन है मुझे कि ये 200 यूनिट वाला स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब हो सकती है। मुझे लगता है कि टोटल फेलियर है 200 यूनिट बिजली फराहम की जाएगी आम शहरियों को। इस तरीके की बातों पर मैं बहुत कम ही जो है वो गौर करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सरकार का झूठा दावा साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय सरकार के खिलाफ कोई बोलना चाहता नहीं है। सब लोगों को इस समय इस चीज़ की पड़ी हुई है कि वो सरकार के हक में बात करें, और एटलीस्ट सरकार से जो फंसे हुए उनके काम है वो क्लियर करें। लेकिन उन कामों को क्लियर करने के लिए आपको सरकार की चापलूसी करनी पड़ेगी, और हम नहीं कर सकते चापलूसी, क्योंकि हमें आवाम की बात करनी है। तो जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो नहीं फंक्शनलाइज हैं, उन्हें फंक्शनल करने के लिए सकीना इतू जी ने दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि हम इन्हें जो है वो बड़े पैमाने पे करेंगे, और साथ के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी एमनेस्टी स्कीम है उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिला है, गरीब लोगों को वो फेल होते हुए नज़र आ रही है। PDP फयाज़ मीर ने यह दावा पेश किया अपनी बिल के अंदर, उसके हवाले से भी बात की है। 1560 पोस्टें वैकेंट है जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, उनको फौरी तौर फिल किया जाए, उस हवाले से भी ये दावा पेश किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इलीगल जो ऑक्यूपेशन है वो स्टेट लैंड का नहीं दे सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपोज की वहीद उर रहमान के इस बिल को, और जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम कुछ बड़े और भी प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, उन प्रपोजल्स को हम बहुत जल्दी जो है वो आवाम के बीच में पेश करेंगे। 3,61,000 नौजवान बेरोज़गार है जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को रजिस्टर्ड किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और दावा पेश हुआ कि जो गवर्नमेंट 5 मरले का
प्लॉट फराहम कर रही है फैमिलीज़ को जिनको नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से मुश्किलात आई हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द ये 5 मरले उन आम शहरियों को तकसीम कर दिए जाएंगे। तो कुछ बड़े अहम तरीन टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात हुई और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चर्चा भी हुई। अब नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा वो देखने वाली बात होगी हुकूमत की जानिब से, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर 200 यूनिट पे आम शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि शायद वो इस समय जो है वो बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरीके के मुश्किलात से काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानी आ रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी कोई इतना बड़ा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। कुछ 2-4 बिल्स को सुना, उसके बाद उन्हें अपोज़ कर दिया, कुछ बिल्स को विड्रॉ कर दिया, कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिला। आज का दिन भी असम्बली का ऐसे ही रहा, इसलिए मैं असम्बली कवर करने नहीं गया, वरना श्रीनगर मेरे लिए जाना बड़ी बात नहीं थी। मैं 10 मिनट में श्रीनगर पहुँच जाता असम्बली कवर करने के लिए। मुझे पता है ना वहाँ पे जाकर कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ ऐसी आवाम के हक़ में है नहीं है जो मैं वहाँ से रिपोर्ट करूँगा। उल्टा मैंने वहाँ पे जाकर जो है वो इनकी बातों को अपोज़ करना है और बहुत बड़े पैमाने पर अपोज़ करना है। तो इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है असम्बली को कवर करने के लिए, आप यकीन मानें, क्योंकि झूठे वादे खोखले दावे आवाम के साथ हैं, क्या फ़ायदा जनाब। जो यहाँ से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा वो सच है, वो हकीकत है। बीजेपी ने तो पहले ही 5-8 सालों में जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया और 5-8 साल जब तक बीजेपी यहाँ रही बच्चे बेरोज़गार हो गए, नौकरियों में स्कैम्स हुए, बद से बदतर हालत हुई, यहाँ पे तबाही हुई, हिंदू मुसलमान करवा दिया, आपस में लड़वा दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पैदा कर दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो वक़्त उम्मीद ये थी कि शायद अपने दावे वादे पूरे करेंगे, लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं वो वादे दावे पूरे किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वैसे की वैसी नज़र आ रही है जैसे बीजेपी थी। तो दोनों पार्टियों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि नौजवान कहाँ जाएगा, अनएम्प्लॉयड नौजवान कहाँ जाएगा, किसके आगे अपनी फरियाद करेगा। ये झूठे दावे कब तक चल सकते हैं? एक ना एक दिन अदल और इंसाफ के लिए आवाज़ तो उठानी है। बहरहाल जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे मुंह से आप हक की बात सुनेंगे और मेरे बाद अगर कोई आएगा तो क्या मालूम वो कौन सी रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मैं हक और इंसाफ की बात ही करता रहूँगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।